بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ 9th کلاس آپ کے 1 by 1 جو ہے ہم ساری چیزیں کمپلیٹ کروا رہے ہیں۔ ابھی بھی بہت زیادہ آپ کے لیسنز رہتے ہیں جو کمپلیٹ ہونے والے ہیں۔ تو آپ کے گرامر کے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جن کو ہم لوگ نے کور کیا ہے۔ ان میں مختلف درخواستیں تھیں، مکالمے تھے، آپ کے خطوط ہیں، کہانیاں ہیں، اور گرامر کی اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے بہت ساری ڈیفینیشنز آپ کو کروائیں۔ کنسیپچول کویسچن ابھی آپ کو ہم نے مزید کروانے ہیں، اور بہت ساری ابھی ایسے چیزیں ہیں جو بورڈ پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ انشاءاللہ 1 by 1 وہ سارے ہی آپ کو کروائے جائیں گے۔ تو مکمل ضرب الامثال جو آپ کی گرامر میں دی گئی ہیں ان میں کامن مسٹیکس اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں وہ ساری ہم آپ کو اپنی جو ہے چینل پہ دے چکے ہیں کہ یہ مسٹیکس آپ کرتے ہیں ضرب الامثال میں، اور پھر آپ لوگ جو ہیں انہی مسٹیکس کی وجہ سے آپ کے مارکس جو ہیں وہ کٹتے ہیں۔ تو آج ہم گرامر کا جو کویسچن کر رہے ہیں وہ ہے درخواست، اور 10 نمبر کا یہ کویسچن ہوتا ہے آپ کے پیپرز میں۔ مین کویسچن ہے یہ آپ کا، اور خط اور درخواست میں جو ہے چوائس ہوتی ہے، آپ نے یا خط کرنا ہوتا ہے یا آپ نے درخواست کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کا مین کویسچن ہے، اور زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہیں درخواستوں کو پریفر کرتے ہیں۔ تو درخواستیں ہم نے کافی امپورٹنٹ درخواستیں کروا دی ہیں آپ کو، لیکن جو آج کی درخواست ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ بورڈ میں جو ہے اکثر بورڈ کے جو ہیں پیپرز میں آ چکی ہے۔ تو آپ کی امپورٹنٹ درخواست ہے جو کہ ہے راشن ڈپو کے خلاف درخواست۔ تو راشن ڈپو جو ہے کس کو کہا جاتا ہے؟ راشن کہتے ہیں جو گھر کا آپ سودا سلف لے کے آتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ تو راشن ڈپو کہتے ہیں اس دکان کو جس سے آپ ڈیلی کی چیزیں جو ہیں وہ خریدتے ہیں۔ یہ ہر ایریے میں، ہر محلے میں، ہر کالونی میں جو ہے یہ بنی ہوتی ہیں، اور ان کا فرض ہوتا ہے کہ یہ ہر طرح کی چیز جو ہے وہ رکھیں، اور تاکہ لوگوں کو کہیں دور جا کر جو ہے وہ چیزیں خریدنی نہ پڑیں۔ تو یہ راشن ڈپو جو ہے اگر وہ چیزیں پراپر نہیں رکھتا اور یا پھر جو ہے کوالٹی اچھی نہیں ہوتی تو اس کے خلاف آپ درخواست کر سکتے ہیں فوڈ کنٹرولر کو، اور فوڈ کنٹرولر جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے ادارہ جو ہے یہ اس کے خلاف ایکشن لیتا ہے۔ جس طرح آج کل جو ہے آپ اگر دیکھیں تو دودھ کے لیے جو ہے دودھ کی دکانوں پر جگہ جگہ چھاپے مارے جاتے ہیں، فوڈ کنٹرولر والے آتے ہیں، اور اگر ناقص دودھ آپ کو مل رہا ہے تو وہ اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر راشن جو ڈپو پر آپ کو راشن صحیح نہیں مل رہا تو اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے آج ہم درخواست لکھیں گے، اور درخواست جو ہے اس میں بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ آلریڈی میں کافی کچھ بتا چکی ہوں آپ کو، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نیو آتے ہیں، نیو جو ہے شاید ہماری ویڈیو آج پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے میں پھر سے دوبارہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریوائز کرتی ہوں تاکہ آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی مشکل نہ ہو۔ تو جو راشن ڈپو کے خلاف درخواست ہے وہ ہم نے کس کو لکھنی ہوتی ہے؟ ہم نے فوڈ کنٹرولر کو لکھنی ہوتی ہے۔ تو فوڈ کنٹرولر کے جو ہیڈ ہیں انہی کو لکھنی ہے ہم نے۔ بخدمت آپ نے لکھنا ہے، بخدمت جناب فوڈ کنٹرولر، اس کے بعد کوما۔ اب بخدمت کے نقطے اکثر اسٹوڈنٹ غلط ڈالتے ہیں، یہ بے کا نقطہ یہاں پہ آ جاتا ہے، اور یہ والا نقطہ اوپر والا نقطہ ادھر آ جاتا ہے، تو وہ عجیب ہی ورڈ بن جاتا ہے، تو اس کے آپ کے مارکس کٹ جاتے ہیں پہلے ہی لفظ پہ۔ اس کے علاوہ بخدمت جناب فوڈ کنٹرولر، اب یہاں پر آپ یا تو جناب لکھ سکتے ہیں یا صاحب لکھ سکتے ہیں، دو لفظ ہوتے ہیں۔ یہاں فوڈ کنٹرولر صاحب آپ دونوں لفظ نہیں لکھیں گے، جناب اور صاحب کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، تو ہم نے آپ کو پچھلی درخواستوں میں زیادہ تر صاحب لکھا، اس میں ہم نے جناب لکھا ہے۔ آپ کی مرضی ہے ایک لفظ چوز کرنا ہے آپ نے، آپ یہاں یہ بھی لکھ سکتے تھے بخدمت فوڈ کنٹرولر صاحب، اور یا پھر آپ یہی لکھیں گے بخدمت جناب فوڈ کنٹرولر۔ اس کے بعد آپ کوما ڈالیں گے، جو بھی آپ کا ایریا ہے، محلہ خیر پورہ لاہور، ہم نے جو بھی آپ ہمیں جو ہے محلہ میں رہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو درخواستوں میں نئی چیز ایڈ ہوئی ہے وہ ہے عنوان یا موضوع، یہاں عنوان لکھا آئے گا یا موضوع لکھا آئے گا۔ موضوع کے بعد 2 ڈاٹ جو ہیں یہ رابطے کے لگائیں گے، اور اس کے بعد آپ درخواست کا جو ہے وہ ٹاپک لکھیں گے۔ درخواست کا ٹاپک کیا ہے؟ راشن کی ناقص تقسیم کی درخواست۔ ناقص تقسیم ہوتا ہے نقص والی چیزیں، کہ آپ کو جو اول تو راشن مل ہی نہیں رہا، اگر مل رہا ہے تو وہ سارا ناقص ہے، کوالٹی کا ہے، پھر آپ کو دور پار جا کر راشن خریدنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ اگلا جو ہے یہ لکھیں گے جناب علی۔
जनाब आली के बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स के, अली के ऊपर यहाँ पर आप खड़ी ज़बर डाल देते हैं और जिससे ये लफ्ज़ बन जाता है जनाब आला। तो जनाब आला कोई लफ्ज़ नहीं होता, जनाब अली लफ्ज़ होता है। उसके आगे ये नदाइया का साइन होता है, तो बस ये आपने डालना है और ये लफ्ज़ जनाब आली है, इसे जनाब आली ही रहने दें। अब आप लोगों ने देखा कि हमारी पहली लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। उसके बाद हमने उस लाइन के हिसाब से इसको ज़रा यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये उससे कम है और फिर जनाब आली बिल्कुल मिड में। तो ये एक अच्छा सा जो है ट्रायंगल की शेप में तकरीबन ये आपका एक एंगल बन जाता है, जो आपका अच्छा इंप्रेशन जो है डालता है चेकर के ऊपर। उसके बाद आप दरख्वास्त शुरू करते हैं गुजारिश है से। तो गुजारिश का लफ्ज़ बहुत सारे बच्चे गुजारिश है कि ये वाली जो 3 लफ्ज़ हैं इनकी जगह छोड़कर यहाँ से आप दरख्वास्त शुरू करते हैं हमारे मोहल्ला से, यहाँ यहाँ से गुजारिश है लिखना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल एक रॉन्ग तरीका है। आपका सही तरीका क्या है कि आपने बखिदमत के बिल्कुल नीचे उसी एंगल पर आपने दरख्वास्त जो है वो स्टार्ट करनी है, क्योंकि यही बोर्ड का जो है ये पैटर्न है। गुजारिश है कि हमारे मोहल्ला खैरपुरा का राशन डिपो जिसका नंबर 513 है, जैसे हमारे घरों के नंबर होते हैं ऐसे दुकानों के भी नंबर होते हैं, तो आप कोई सा भी नंबर जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारे लिए परेशानी का बायस बना हुआ है, उसके खुलने और बंद होने के औकात मुकर्रर हैं। उनके मुताबिक राशन डिपो खुलता नहीं है, जब खुलता है तो मतलूबा चीज़ें गायब होती हैं। जब कुछ पूछा जाए तो राशन घरों से रवैया नामुनासिब होता है। जब खुलता है तो मतलूबा चीज़ें गायब होती हैं, मतलूबा चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत है। जब कुछ पूछा जाए तो राशन घरों से रवैया नामुनासिब होता है। राशन आता तो दिखाई देता है, लेकिन ना जाने अचानक कहाँ गायब हो जाता है। कोई खुशनसीब ही होगा जो अपनी मतलूबा चीज़ें हासिल कर पाता है, वरना अक्सर यही जवाब मिलता है कि चीज़ें हैं नहीं तो दें कहाँ से। लोग अक्सर बाजार से महंगी चीज़ें खरीद कर गुजारा करते हैं। आप इस राशन डिपो के कारपरदाजों को हदायत फरमाएं कि वो बाकायदगी और शराफत का रवैया इख्तियार करें और ख़रीदारों से खुश इखलाक़ी से पेश आएँ। अब यहाँ इस दरख्वास्त में पूरी की पूरी जो है आपने अपनी कंप्लेन बता दी है, आपने उसके ख़िलाफ़ बता दिया है कि राशन अव्वल तो खुलता ही नहीं है और वो कहते हैं कि जब आप जाएँ तो कहते हैं हमारे तो औकात मुकर्रर हैं, लेकिन अगर खुलता ही है तो उस पर वो कहते हैं कि जी हमारे पास ये चीज़ भी नहीं है और ये चीज़ भी नहीं है। और अगर कोई कहता है कि भाई क्यों नहीं रखी हैं आपने, हम अब कहाँ से लेके आए इतनी दूर से चीज़ें, तो उसके बाद वो रवैया बहुत ही नामुनासिब रखते हैं और बुरी बुरी जो है वो बातें करते हैं। तो ये सारी कंप्लेन आपने जो है ये आपने इन अल्फाज में जो है ये बयान कर दी। उसके बाद जब आपने दरख्वास्त एंड करनी है तो क्या लिखना है, आइन नवाजिश होगी लिखना है यहाँ पर, और इस साइड पर आपने डेट लिखनी है। जून का महीना क्योंकि आसान होता है लिखना बच्चों के लिए, इसीलिए मैंने जून लिखा है, 3 जून। 3 के बाद आपने डैश डालनी है, जो भी यहाँ पे आप नंबरिंग डालेंगे उसके मुताबिक आप यहाँ डैश डालेंगे और आगे 2025 डालेंगे, 2025 के आगे आप हमज़ा डालेंगे। 2025 का जो ज़ीरो है, ज़ीरो जो है उर्दू गिनती के अंदर ज़ीरो मौजूद नहीं है, बल्कि ये डॉट की तरह लगाया जाता है या डायमंड शेप होती है। तो इस ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं कि सिफ़र डाल देते हैं यहाँ, तो सिफ़र नहीं होता बेटा, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है आपने एक डॉट डालना है। अब आ जाएँ इस साइड पर, इस साइड पे आप क्या लिखेंगे? इस साइड पर लिखेंगे सबसे पहले आप दरख्वास्त गुज़ार। बहुत सारे बच्चे आइन नवाज़ी शोगी के बाद लिख देते हैं अल आरिस और फिर नीचे लिखते हैं दरख्वास्त गुज़ार। अब आपको बताया जा रहा है कि दरख्वास्त गुज़ार और अल आरिस का एक ही मतलब होता है, इसलिए या तो आप दरख्वास्त गुज़ार लिखेंगे या आप अल आरिस लिखेंगे। अगर आपने यहाँ अल आरिस लिखना है तो आप ये दरख्वास्त गुज़ार नहीं लिखेंगे। हमने यहाँ दरख्वास्त गुज़ार लिखा है इसलिए हमने अल आरिस नहीं लिखा। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन है, उनकी कन्फ्यूजन ये हम दूर कर रहे हैं आज कि ये आपने इस तरीके से करना है तभी आपकी दरख्वास्त ठीक होगी। उसके बाद क्योंकि आप अकेले ये दरख्वास्त नहीं लिख रहे बल्कि आप अपने पूरे एरिया की तरफ से दरख्वास्त लिख रहे हैं, एज अ हेड आप उनकी तरफ से लिख रहे हैं, नियाज मंदान लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद अहले इलाका खैरपुर लाहौर। अब यहाँ ये आपका एड्रेस है, नंबर आपने दुकान का ऊपर बता दिया है और ये आपने बता दिया कि पूरे अहले इलाका ने आपको जो है ये दरख्वास्त लिखी है
और उसके बाद आपने लाहौर। अब आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि हमने दरख्वास्त जब स्टार्ट की है तो उस वक़्त भी हम लोगों ने मार्कर का इस्तेमाल किया है, जब हमने एंड किया है तो उस वक़्त भी मार्कर का इस्तेमाल किया है। ये एंडिंग चीज़ें जो हैं ये आप मार्कर के साथ लिख सकते हैं। इसी तरह आपने जब दरख्वास्त स्टार्ट करनी है तो आप ये सारी की सारी दरख्वास्त जो है ये आप स्टार्टिंग पॉइंट्स जो हैं ये सारे के सारे आप मार्कर के साथ लिखेंगे। इस तरीके से आपकी दरख्वास्त जो है ये बहुत खूबसूरत लगेगी और चेकर पर अच्छा इम्प्रेशन जो है वो डालेगी। तो अज़ीज़ तलबा ये आपकी आज की इम्पोर्टेंट तरीन दरख्वास्त थी, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। आप चाहें तो पिछले पेपर्स निकाल के देख लें, क्योंकि आपकी 9th क्लास, ये जहन में रखें, आपकी 9th की बुक चेंज हुई है लेकिन ग्रामर चेंज नहीं हुई। ग्रामर वही है आपकी जो पहले ही थी, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस उन्होंने ज़रूर की हैं लेकिन मेन जो चीज़ें हैं वो वही हैं। तो दरख्वास्तें, ख़त और कहानियाँ जो हैं जो शुरू से इम्पोर्टेंट चली आ रही हैं वही इम्पोर्टेंट हैं। तो आपने इसलिए किसी भी दरख्वास्त को, अगर आप सिर्फ दरख्वास्तें कर रहे हैं तो कम अज़ कम 10 दरख्वास्तें आपकी एग्जैक्ट रेडी होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल के नाम, क्योंकि आप हेड मास्टर के नाम बहुत सारे कर चुके होते हैं तो उनकी स्टेटमेंट भी पता होती है। तो जो राशन डिपो है, हेल्थ ऑफिसर है, और इसी तरह जो है और डाकी के खिलाफ है, ये वाली जो दरख्वास्त है उनकी ये वाली स्टेटमेंट जो है चेंज होती है। तो ये वाली आप लोगों ने, सुई गैस कंपनी के नाम है, तो ये वाली दरख्वास्तों को आपने ख़ास तौर पे फोकस करना है। हेड मास्टर के नाम आ जाए तो वो तो आप इजीली जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन ये वाली जो दरख्वास्तें हैं इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपको हर दरख्वास्त पे पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट आनी है। इस तरीके से अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो आप जो हैं बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर जो है वो हासिल कर लेंगे, 10/10। उम्मीद है कि आपको जो है बोर्ड में अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो इसकी दरख्वास्त जो है आप लोगों की रिटन प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितनी भी आपकी मिस्टेक्स हैं वो इसी तरह कवर होंगी अगर आप रिटन प्रैक्टिस जो है वो करेंगे, क्योंकि उर्दू जो है ये रिटन प्रैक्टिस के बगैर नहीं आती। आपको कई दफ़ा आप लफ्ज़ तो बिल्कुल ठीक लिखते हैं लेकिन नुक्ते बिल्कुल गलत जगह पे डाले होते हैं, जैसा कि मैंने वो खिदमत का बताया कि ये बे का नुक्ता यहाँ आता है जीम के नीचे, और ये खे का नुक्ता जो है ये यहाँ ऊपर होता है। तो ये बिल्कुल ही अजीब लफ्ज़ बन जाता है, जो कि पहला ही लफ्ज़ अगर आपका अंडरलाइन हो गया तो उससे ही चेकर पे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेसन जो है वो समझ आ गया होगा। बहुत सारी और अहम इंफॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे, ताकि आप बोर्ड को में जितना ज़्यादा जल्दी फ़ायदा उठा सकते हैं हमारी वीडियोस से वो फ़ायदा उठाएं। उम्मीद है कि इस तरह से अगर आप बोर्ड में तैयारी करते हैं तो आप अपने उर्दू के पेपर को बहुत अच्छे तरीके से जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी हम आपको चंद दिनों तक एक वीडियो भेजेंगे जिसमें हम बताएंगे कि आपने उर्दू पेपर जो है वो किस तरह से अटेम्प्ट करना है और कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है, कितने टाइम में आपको पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। तो सारी मैनेजमेंट इंशाल्लाह आपको बताई जाएगी। तो उसके मुताबिक फिर आप अपना जो है ये सारे का सारा जो है अपना पेपर की तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स करीब हैं तो आने वाली हर वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।